Hello friends. Okay, so this is Dr. Vikas Kumar. Once again, we are discussing English, right? And in the last few sessions, in fact, in the last couple of months or so, right? A month and a half or so, right? So in this phase, we have discussed various components of English as a competitive, segment, a competitive section, right? In various exams, you talk about any competitive exam, there are questions based on English. And what exactly on English, right? We have reading comprehension, sentence rearrangement, vocab. So we have been discussing all that. Great. Now that's a great idea. I mean, it had to start with it. Today, what we've done is we've made a few changes. आज के बाद जो content आएगा उसमें थोड़े से changes होंगे. Every session will be new. तो नॉवेल्टी क्रिएट करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मेड सम चेंजेस, राइट? वो आपको नोटिसेबल होंगे वंस वी स्टार्ट, राइट? सो लेट्स बिगिन. बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए. द फर्स्ट इज द सेम, idioms and their meanings. ओके, गिव समबडी द बेनिफिट ऑफ द डाउट. इसी से क्लियर हो जाएगा हमें, राइट? सम बेनिफिट ऑफ द डाउट. आई एम सो सॉरी फॉर दैट, या okay. Yeah, so the benefit of the doubt. Benefit is a positive word, right? Ye color combination may not be great. Let me make it yellow, right? Yeah, that looks better, more readable, right? So benefit of the doubt, something positive, right? So अब नीचे देखते हैं. Trust what someone says. It has to be something positive. ये नहीं हो सकता, गलत है. स्विंडल मीन्स किसी से धोखाधड़ी से पैसे ऐंठ लेना. चलिए नेक्स्ट वन, गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम. सिस्टम से बाहर हम कब करते हैं? जब किसी चीज़ को ख़त्म कर लें या फिर वी ट्राई टू मूव ऑन. सो डू द थिंग यू हैव बीन वांटिंग टू डू सो यू कैन मूव ऑन, राइट? ये तीनों गलत हैं. ग्रेट. It is not rocket science. It is a common phrase, common idiom that is used more often than not. बहुत बार, अक्सर. If we are talking about something that is perceived to be difficult, but it is not difficult, right? So it is not complicated. Means it is easy. It is not rocket science. Don't worry about it, right? Okay. You can lead a horse to water, but you can't make him drink. यानी आप किसी को गाइड कर सकते हो उनकी जगह पर. You cannot work. You can't force someone to make the right decision. It is their choice. You can guide them. You can tell them about the pros and cons. You can tell them about the benefits of the better decision, but you cannot make the decision on their behalf. It is their job. They'll have to do it, right? No, not at all. All wrong. Well begun is half done. Half done and well begun. That means getting a good start is important. शुरुआत अच्छी हो जाए तो चीज़ आधी समझ लीजिए फतेह हो जाता है किला. चलिए, this is wrong, this is wrong, this is also wrong. Fine. अब this is the change I was talking about. Many students have requested us to focus on grammar. Now, my dear friends, if I talk about grammar, what exactly in grammar do we need? हमें किस फॉर्म में ग्रामर चाहिए? हमें इस फॉर्म में ग्रामर चाहिए कि जो एग्जाम्स में आए. सो एग्जाम्स में मोस्टली क्या आता है? These are questions based on sentence correction. अब let's see, I am an examinee. मेरा एग्जाम है, let's say, right? For example, or I have a paper in front of me, right? अब उस पेपर में there are about, let's say, 10 questions on sentence correction. अब उस sentence correction के कौन से हिस्से पर based हैं? पहले तो we need to understand गलतियां होती कितने तरीके की हैं. Let's start, right? अब इस question को देखने से पहले, right? इसको देखने से पहले this is a part of the explanation, right? So यहीं तक आपने कंसिडर करना है. ये भी एक्सप्लेनेशन का पार्ट है आपको समझाने के लिए. एनीहाउ, इसको नहीं देखते अभी. लेट्स बिगिन. सो गलतियां होती कितने तरीके की हैं? एक होती हैं ग्रामेटिकल, विच ऑल ऑफ अस नो अबाउट, राइट? ग्रामेटिकल गलती कैसी होती है? मैंने कोई टेंस गलत इस्तेमाल कर लिया,
और आई हैपन टू यूज अ रॉन्ग वर्ब, कोई डिड के साथ मैंने थर्ड फॉर्म यूज कर दिया, जो कि अक्सर लोग करते हैं, राइट? सो इस तरह की गलतियों को हम ग्रामेटिकल गलतियां कहते हैं। फाइन, दिस इज वन। ठीक है, इसके अलावा कोई गलती हम कर सकते हैं क्या? दैट काइंड ऑफ गलती इज टर्म्ड कंस्ट्रक्शनल एरर। कंस्ट्रक्शनल एरर्स। अब ये कंस्ट्रक्शनल एरर्स कौन से होते हैं? जो ग्रामेटिकली चाहे हो चाहे ना हो, वाइल कंस्ट्रक्टिंग द सेंटेंस हम कोई गलती कर जाते हैं। यहां पे ये भी हो सकता है कि चॉइस ऑफ वर्ड मेरी गलत हो जाए, मे बी, राइट? क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। या फिर लेट मी इरेज दिस, और इजी करता हूं आपके लिए। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर हो। अब मॉडिफायर्स क्या होते हैं, कैसे मिसप्लेस उनको किया जाता है, पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं। एवरी सेंटेंस हैज एन एक्शन। लेट्स से आई किल्ड द टाइगर while dancing। ये एक सेंटेंस है, हो सकता है ऐसा कोई सेंटेंस इन स्लाइड्स में भी आपको नजर आए। चलिए, सो आई किल्ड द टाइगर while dancing। वेयर इज द सब्जेक्ट नाउ? आई। किसने मारा है? मैंने, राइट? कब मारा है? while dancing। इसीलिए नाउ दैट while dancing इज एडिंग टू द मीनिंग ऑफ आई, है ना? इसको क्वालिफाई वो कर रहा है, ठीक है? सो अगर ऐसी सिचुएशन आप देखते हैं, देन दिस बिकम्स द मॉडिफायर। मॉडिफायर और आई हो गया मॉडिफाइड, यानी जिसके मीनिंग में कुछ ऐड या डिलीट या कुछ भी व्हाटएवर हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, राइट? दिस इज द मॉडिफायर, दिस इज द मॉडिफायर। अंग्रेजी ये कहती है, आई मीन द रूल सेज दैट modifier and the modified need to be placed adjacent to each other। जितना हो सके, जितना भी पॉसिबल हो पाए, it is imperative for us कि उनको इकट्ठे रखें। अब कैसे रखते हैं इकट्ठे, वो भी एक एक्सरसाइज के थ्रू हम देख लेते हैं, एक सेंटेंस के थ्रू। चलिए, while dancing I killed the tiger। Fine। ये सेंटेंसेस और ये रूल्स जो हम आज कर रहे हैं, प्लीज इनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो देखिए, ये ऐसा ही है जैसे ड्राइविंग है, राइट? मेरे को किसी ने बता दिया कि भाई ऐसे इस तरह से स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखते हैं, इस तरह से गियर लीवर को मैन्यूवर करते हैं, इस तरह से आपको गाड़ी चलाना है। इफ आई डोंट practice it, I'll never be able to be an expert at it, right? किसी ना किसी दिन मैं किसी और की गाड़ी में अपनी गाड़ी को मार दूंगा। फाइन। सो क्या हो सकता है, नीचे गिरा दूं कहीं। चलिए, सो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नॉट ओनली समझना है, आपको इनका प्रैक्टिस करना है, राइट? चलिए, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है जी, ये तो शायद हमारे समझ में आ गया। अगला रूल देखते हैं, अगले तरीके का कंस्ट्रक्शनल एरर क्या हो सकता है। ओके, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल योर टीचर्स, एवरीबॉडी अराउंड यू, एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाहता हूं आपको। सिट डाउन। शायद आपको ये कॉमिक लगेगा जो वी आर गोइंग टू डिस्कस, मजा भी आए, शायद हंसी भी आए। मुझे एक बात बताइए, जब मैं कह रहा हूं सिट, सो इजंट इट अंडरस्टूड कि इंसान नीचे ही बैठेगा? इज इट पॉसिबल कि मैं किसी को कहूं कि सिट और वो ऊपर जाके बैठ जाए, सो दैट मेरे को अब ये जरूरी हो गया कि भाई ये तो ऊपर ना बैठ जाए, जाके छत पे ना बैठ जाए, तो मुझे इसको बोलना ही पड़ेगा सिट डाउन। डू आई नीड टू से डाउन? इसकी जरूरत है क्या? हम लोग ने क्या किया है, इसको और स्टैंड अप दोनों गलत है टेक्निकली। हमने इतना यूज किया है कि अब ये बेचारे फ्रेजल वर्ब्स बन गए हैं। फ्रेजल वर्ब्स, इनको हम बड़े शान से एक्सेप्ट करते हैं, एंड वी डोंट गिव अ डैम दैट वी आर स्पीकिंग इन द रॉन्ग इंग्लिश। दिस इज नॉट करेक्ट, इट कैन नॉट बी करेक्ट, हाउ कैन इट बी? ये कैसे करेक्ट हो सकता है? अब आप खुद सोचें। अच्छा,
डोंट पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग. आप लॉजिक अप्लाई करें. आई एम नॉट सेइंग कि मैं कह रहा हूं इसलिए ठीक है. जस्ट अप्लाई योर ब्रेन्स एंड जस्ट अप्लाई सम रैशनल. क्या ये ठीक हो सकता है? सिट डाउन. डू वी नीड द वर्ड डाउन? अंडरस्टूड नहीं है कि नीचे ही बैठेगा आदमी. और है ऐसे, और है. इसमें हम बहुत एक्सपर्ट होते हैं ये वाली गलती करने में. इसको एरर ऑफ रिडंडेंसी कहते हैं. मैं अभी लिख के भी बताऊंगा आपको. पहले थोड़े मजे ले लीजिए. दूसरा सेंटेंस देखते हैं. ओके, सो इज इट रेनिंग आउटसाइड? ऐसे हम अक्सर पूछते हैं, राइट? अब क्या इसकी जरूरत है? कोई ऐसी बारिश भी है जो अंदर ही हो रही है? क्या ये जरूरी है कि मैं आउटसाइड कहूं यहां पे? अगर मैं कहता हूं इज इट रेनिंग, इजंट इट इनफ? इजंट इट अंडरस्टूड कि बारिश बाहर ही हो रही होगी यार, अंदर थोड़ा मैं पूछूंगा हो रही है कि नहीं, राइट? सो दिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड, ये आउटसाइड. लेकिन हम बोलते हैं बड़े शान से क्योंकि हमें आदत पड़ गई है ना? चलिए, क्या करें, आदतें हैं, जाती नहीं आराम से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो गलत है जी. फाइन. एक और बड़ा कॉमन है, रिटर्न बैक. आपको बैक की जरूरत नहीं है. व्हेन यू से रिटर्न, इट इज इनफ, है ना? समझ आ गया ना? जब आपने रिटर्न कह दिया, जॉब्स डन. व्हाई डू नीड द वर्ड बैक विद इट? लेकिन हम ये भी बोलते हैं बड़े शान से. सबसे अच्छा तो अब आने वाला है जिसका कोई जवाब ही नहीं है. मुझे इसका मतलब बताइए. यहां तक ठीक है. अब मैंने दिखा दी अपना इंडियनिज्म. ही इज माई रियल ब्रदर, वो मेरा असली भाई है. डू आई हैव एन अनरियल ब्रदर ऑल्सो? है, मगर आपको नहीं दिख रहा, मुझे ही दिख रहा है. मेरे साथ खड़ा होकर पढ़ा रहा है क्योंकि अनरियल है ना, रियल नहीं है तो आपको कैसे दिखेगा? कैन आई हैव एन अनरियल ब्रदर ऑल्सो? अगर मेरा अनरियल ब्रदर हो सकता है तो फिर मेरा रियल भी हो सकता है फिर तो. बट आई नीड टू हैव एन अनरियल ब्रदर देन, है ना? आर यू बीइंग एबल टू फॉलो? देखिए, ये रियल ब्रदर. अच्छा, एक और है. रियल ब्रदर ही बेस्ट नहीं है, इससे भी शायद अच्छा है. सॉरी. व्हाट इज योर good name? Name. Okay, then I must have a bad name also. I must have a better name also. I must have a worse name also, and I must have the best name also. Right? अगर मेरा good name है तो better और best भी तो होंगे. फिर जो चाहे बता दो, जो खुद को पसंद हो वो रख लो. Right? This is what I'm trying to suggest. ये सब error of redundancy है. जब redundancy होता है when we put a word in a sentence जिसकी जरूरत नहीं है, जो मीनिंग को इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा, जिसके बिना भी सेंटेंस कंप्लीट है, वो ऐसे ही डाल दिया हमने, उसको redundancy कहते हैं. एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन एरर जो हम लोग करते हैं, और बहुत शान से करते हैं, बहुत शान से. चलिए, सो इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की गलती भी कंस्ट्रक्शनल गलती होती है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये वो दर्दनाक कॉन्सेप्ट है जो मोस्ट ऑफ अस गलत करते हैं. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जैसे कि दे प्लेज. मैंने तो बहुत एविडेंट सा लिखा है, बट ये इतना इजी नहीं होता. चलिए, दे प्लेज, दे प्ले होना चाहिए, ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज दैट, राइट? ये भी थोड़ा सा ट्रिकी तो है. फाइन. चलिए, देन वी हैव द गलती ऑफ पैरेललिज्म. कई बार हमारे सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो पैरेलल नहीं होता. लाइक ही वॉज ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड ही स्पोक. सो अब फर्स्ट टू वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में, थर्ड नहीं है. इसी को पैरेललिज्म की गलती कहते हैं. कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये पैरेलल होना चाहिए. एंड
स्पीकिंग, काट के ही करना पड़ेगा, स्पीकिंग। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा आपको। फाइन, अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट वन, इसको इग्नोर करें, इसको भी इग्नोर करें, ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन है। ही इज स्पीकिंग फॉर द लास्ट 4 hours, ये चाहिए हमें। ही हैज बीन स्पीकिंग, ग्रामेटिकल एरर। वाई डू वी नीड इट? जब ये बताया हो कि कितनी देर से कोई काम हो रहा है और अभी भी हो रहा है, पहले से पहले शुरू हुआ था, देन दिस इज द टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये टेंस हमें चाहिए, राइट? तो ये सेंटेंस गलत है, ये फर्स्ट पार्ट गलत है। चलिए नेक्स्ट। ओके जी, ये देख लीजिए। मिस्टर शर्मा अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स आर प्लानिंग। ठीक है, अब जब ये अलॉन्ग विद है तब क्या होता है? अलॉन्ग विद में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखते हैं कैसे होता है। द सब्जेक्ट rather the verb agrees with the first subject, first subject। अब सब्जेक्ट ही क्या होता है पहले तो वही समझ लेते हैं, जो एक सेंटेंस में एक्शन लेता है या जिसके ऊपर या जो मेन होता है, राइट? सो कौन प्लान कर रहा है टू विजिट शिमला? मिस्टर शर्मा, पहला सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड्स, ये सब प्लान कर रहे हैं, राइट? अब हम कह रहे हैं कि इट शुड टेक, द वर्ब शुड अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। वर्ब कहां पर है? आर, मेन वर्ब आर है, राइट? सो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर शर्मा, विच इज सिंगुलर, देयरफॉर मिस्टर शर्मा अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, ये आर की जगह इज प्लानिंग आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज परफेक्ट, राइट? आई होप क्लैरिटी हो गई होगी। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर टोल्ड अस दैट द स्टूडेंट्स हैड बीन स्टडिंग सिंस द लास्ट 4 hours। ठीक है जी, ये 4 घंटे जो है ना, देखिए आवर्स के साथ आवर्स हो गया, मिनट्स या ईयर्स, जिनको अक्सर इंडिया में ईयर बोलते हैं, इट इज ईयर्स, राइट? वीक्स, देन मंथ्स, सेकेंड्स, ऑल दीज टेक फॉर, नॉट सिंस। सिंस कब यूज होता है? सिंस भी देखते हैं। स्पेसिफिक एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं, माई फ्रेंड हैज बीन क्राइंग सिंस ही गॉट married, which is natural, nothing new about it। ठीक है जी, my friend has been crying since he got married। तो एक specific action है और कितना सच्चाई के करीब भी है ये सेंटेंस, है ना? चलिए, so this is fine। since और कहाँ कहाँ यूज होता है? Let's say 1931, specific year, 5 PM, specific timing, और yesterday, point of time, morning, morning के साथ भी since यूज करते हैं, morning afternoon के साथ। Fine, चलिए, so we are going to continue। okay, has been studying for, you're wrong, for the last 4 hours। Find out the part with an error. Okay, the question is the same, but the words are different now। We all know that the Battle of Panipat is historical। Historic आएगा जी, ये explanation भी है, ये गलत है। Why?
पड़ोस में अगर आपने लेट से कल परसों किसी की लड़ाई देख लियो, दो बंदे मिले, उन्होंने एक दूसरे के साथ खूब प्यार मोहब्बत से एक दूसरे का सिर फोड़ दिया, राइट, दैट ब्रॉल is not historic, it is historical. Why is it historical? Because it happened in history, that's it. It has not created history. अगर किसी बैटल ने या किसी भी चीज़ ने जो पहले हो चुका है, अगर उसने हिस्ट्री क्रिएट किया है, then it is historic. So बैटल ऑफ पानीपत तो याद करा जाता है आज भी, it is historic. ये गलत है, ठीक है जी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने रिसेंटली देखी वो हिस्टोरिकल है, if it has not created history. We all know that the failure of the students was imputed on the teacher who taught English. बेचारा. Okay, failure of students was imputed. मतलब blamed. Blamed. ठीक है? Teacher who taught English. Okay. Imputed takes to. Impute हमेशा to के साथ आता है, on के साथ नहीं. ये है idiomatic usage. अब मुसीबत ये है कि ये कहाँ से सीखें हम, है ना? idiomatic usage. आपका ये सवाल इज़ वेरी जायज़, इज़ वेरी लेजिटिमेट, वेरी वैलिड. ये कहाँ से सीखेंगे हम? ये कुछ तो हम आपको सिखा देंगे हमारी वीडियोस में. इसके अलावा आप रीडिंग करेंगे. रीडिंग क्या? सिर्फ व्हाट्सएप टेक्स्ट नहीं, फेसबुक पे रीडिंग नहीं, वो करते रहिए, करते हैं तो, लेकिन उसके अलावा अच्छी किताबें पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़िए, थिसॉरस पढ़िए. These are the things to read, right? तो वहाँ पे आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिन पे इम्प्यूट के साथ, जिनके साथ टू लगा होगा, यूज़ करा होगा ऑथर ने. और भी हैं बहुत सारे, अस्क्राइब के साथ टू, एट्रीब्यूट के साथ टू, अप्राइज के साथ ऑफ, बहुत है. कोप के साथ अप नहीं. I don't know why do we use it? Cope up. It is cope. Okay, we all know that the failure of students was imputed to. टू करके मैं इसको ठीक कर दूंगा, ठीक है जी. चलिए. The success of the man was ascribed on. अब ascribe एक ऐसा verb है which also takes to. Same meaning है इसका भी. Attribute, ascribe और impute का more or less same meaning है. देख लेते हैं एक बार. Fine. I hope it is clear to you. Find out the part with an error. The phenomena were attributed to his manners and nature. No error. यार ये plural है या फिर सिंगुलर? दैट नीड्स टू बी सीन. देखते हैं. फिनोमिनन इज सिंगुलर. अगर ये वर्ड होता तब ये वर हो जाता आपका वॉज. अभी द सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है. ओके, चलिए ये देखें, ये प्लूरल है. सो मीडिया आर हाईलाइटिंग द मैटर टू अ लार्ज एक्सटेंट. द सेंटेंस इज करेक्ट, नो एरर. मीडिया के लिए सिंगुलर क्या है वो देखते हैं. मीडियम सिंगुलर है, मीडिया इज प्लूरल, सो द सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट. ठीक है. The criteria set by the authorities have been challenged by many aspirants. Sentence again is correct. अगर आपको what did I do? Singular चाहिए ना? Criterion has been challenged. अब ठीक है. Criterion is singular, has been fixed. Has been fixed. Criterion is singular और अब ठीक है, राइट. चलो जी, चलते हैं आगे. द फेलियर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज द इफेक्ट. ये देखिए, ऑफ द टीचर हु डिड नॉट टेक पेन. अफेक्ट आना चाहिए या इफेक्ट आना चाहिए? इफेक्ट नाउन है, सो सेंटेंस करेक्ट है. अफेक्ट क्या है? अफेक्ट का मैं यूसेज आपको बता दूं. आई affected you, right? So this is a verb. Action खुद है ये, affect. Here ये e वाला जो है, it is my effect. Let's say it is my effect. Effect here is a noun. ये बड़ा सा सर्कल इसलिए किया है ताकि ये पहचान पाए आप इसे. It is a noun. नीचे वाला is a verb.
ठीक है, सेंटेंस हमारा करेक्ट है। चलें आगे, चलो जी पैसेज रीड करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स देन। आज वी हैव रिमूव्ड द ऑप्शंस फॉर यू। In 1967, John Lennon wrote a song called All You Need Is Love. Oh wow, what a romantic passage. 35 years later, Trent Reznor from Nine Inch Nails wrote a song called Love Is Not Enough. Okay. Reznor, despite being famous for his shocking stage performances and his grotesque, weird hota hai ye. Ugly, weird, and disturbing videos, got clean from all drugs and alcohol, married one woman, had 2 children with her, and then cancelled entire albums and tours so that वो घर पे रह सके and be a good husband and father. How lovely. जो लोग सिंगल हैं उनको तो ये All You Need Is Love पसंद नहीं आया होगा, इस है ना। इनफैक्ट ये पसंद आया होगा, दूसरे लोग को शायद ये पसंद आया होगा जो सिंगल्स हैं, या उल्टा कह गया मैं, जो सिंगल्स हैं उनको ये पसंद आया होगा क्योंकि अभी उनको डिज़ायर होगी, लेकिन जो कपल्स हैं उनको शायद ये नज़र आने लगा होगा दैट दिस इज़ नॉट इनफ। चलिए तो आप समझ गए। वन ऑफ दीज टू मैन हैड अ क्लियर एंड रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव। रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव। वन ऑफ देम डिड नॉट। एक को थी, एक को नहीं थी। शायद उसने लड्डू नहीं खाया होगा जिसने, उसको नहीं होगी। One of these men idolized love as the solution to all his problems. Wow. One of them did not. One of these men probably a narcissistic brat. Okay. One of them was not. Contrast है दोनों में. In our culture, many of us idolize love. Yes, we do so. Right? We see it as some lofty cure to all problems. Our movies and stories, history, they all celebrate it as life's ultimate goal, the final solution for all of our pain and struggle. फिल्मों में तो वैसे भी यही दिखाते हैं, प्यार ही पूजा है, प्यार ही सबसे बड़ी चीज़ है। हीरो पता नहीं क्या क्या सैक्रिफाइसेस कर देता है, हीरोइन भी, राइट? And because we idolize love, we overestimate it. As a result, our relationships pay a price. So अगर बाकी चीज़ों के साथ बैलेंस नहीं होगा तो लव भी सफ़र करेगा। When we believe that all we need is love, right, then like Lennon, we are more likely to ignore fundamental values as respect, humility, and commitment towards the people we care about. After all, if love solves everything, then why bother with all the other stuff, all of the hard stuff? फिर पैसे भी क्यों कमाने, आप तैयारी भी क्यों कर रहे हो एग्जाम की, अगर प्यार ही सब कुछ है, राइट? सो प्यार तो फिर दुकानदार को भी यही कह सकते हैं कि भाई पैसे क्या करने, प्यार ही बहुत है। But if like Reznor, we believe that love is not enough, which is true, which is being practical, then we understand that healthy relationships require more than pure emotion or lofty passions. Lofty मतलब heighted, वो जैसे नए नए प्यार वाले लोग करते हैं ना, lofty, बड़ी बड़ी बातें। We understand that there are things more important in our lives, absolutely, and our relationships than simply being in love. And the success of our relationship hinges, depend करती है on these deeper and more important values. Not only values, materialistic चीज़ें भी to a certain extent. Why is not love enough? क्यों enough नहीं है वो? Because there are other requirements also. अब उसमें फीलिंग्स भी हैं, पैसे भी हैं, ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट सब है। फर्दर ऑथर ने कहा है, मैं आपको लेके चलता हूं वहां पे, ये तो हो गया, ये देखिए और ध्यान से देखिए, या अगर सारी चीज़ों का बैलेंस नहीं होगा सो इवन रिलेशनशिप्स पर असर आएगा और प्यार अकेला सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चलिए, द फर्स्ट इज डन। सेकेंड, इन द सेंटेंस व्हेन वी बिलीव दैट ऑल वी नीड इज लव, देन लाइक लेनिन दिस ओके, राइट, वी केयर अबाउट टू विच पार्ट ऑफ स्पीच डज द वर्ड फंडामेंटल बिलोंग। फंडामेंटल तो ईजी है, कहते हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं हमें फंडामेंटल राइट्स, जिनके बेसिस पे आजकल लोग कुछ भी कहते हैं।
रीजन ये होता है कि मेरा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट्स इज द नाउन। सो जो नाउन की क्वालिटी बताए वो क्या होता है? वो होता है आपका एडजेक्टिव। चलिए, यहां तो एडजेक्टिव है, यहां क्या है? फंडामेंटल what where is fundamental then? Ignore fundamental values. Which values? Fundamental values. Adjective. Simple. All right. Disturb को use करना है as a verb, noun and an adjective. Very good question. चलिए तीनों try करते हैं. As a verb, I want to disturb you. Disturb you. You. ठीक है, चलिए अगला नाउन। अब यहां पे वर्ब क्यों है? बिकॉज इट इज एन एक्शन। अब नाउन देखना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। डिस्टर्बिंग समवन इज गुड, नहीं बैड कर देते हैं यार। चलो, अब यहां ट्रिक क्या किया है? इसको एज अ जेरेंड यूज किया है मैंने। व्हाट आर जेरेंड्स? जेरेंड्स आर दोज वर्ब्स विच एक्ट एज अ नाउन ऑल्सो, लाइक रनिंग। रनिंग ये आईएनजी में ही एंड होते हैं। स्विमिंग ये वर्ब भी है, नाउन भी है। स्विमिंग, सो ये जेरेंड है, राइट। अब एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। ओके, इसको क्लीन करना पड़ेगा पहले। चलिए, ही सिंग्स डिस्टर्बिंग सॉन्ग्स। वो सॉन्ग्स जो डिस्टर्बिंग करें, सॉन्ग्स जो डिस्टर्ब करें, सॉरी। सॉन्ग्स इज द नाउन, उसकी क्वालिटी क्या है? दैट वो डिस्टर्बिंग होते हैं, एडजेक्टिव। सो हमने तीनों कर दिए। चलिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? दैट मालूम ही होगा आपको। लव ऑन इट्स ओन इज नॉट इनफ। और बहुत कुछ चीजें चाहिए होती हैं लाइफ के लिए। ग्रेट। यूज द वर्ड लव बोथ एज अ नाउन एंड एन एडजेक्टिव। नाउन तो ठीक है जी, चलिए बहुत ईजिली हो जाएगा वैसे तो। वो चलिए, इट्स अ फीलिंग। सो ही इज इन लव। पुरानी फिल्में तो नहीं याद आ रही हैं? द क्वेश्चन यूज टू बी, टीचर वुड आस्क अ क्वेश्चन, तुम बताओ प्यार क्या होता है ना? लकीली वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। चलिए, ही इज इन लव, ये नाउन हो गया जी, नेम ऑफ समथिंग। एडजेक्टिव करते हैं अब। आई हेट लव सॉन्ग्स। विच सॉन्ग्स? लव सॉन्ग्स। नाउन, ये नाउन हो गया। अब ये इसका क्वालिटी है, एडजेक्टिव। सो आई हेट लव सॉन्ग्स मीन्स लव यहां पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज कर दिया गया है। फाइन, ये नई चीज एक और लेकर आए आपके लिए। डू वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग? कई वर्ड्स होते हैं ऐसे जिनके एक, दो या तीन मीनिंग्स भी होते हैं और उतना ही अलग यूसेज भी होता है। Let's find out. Are these called homonyms? Yes, these are called homonyms. The first one, arm. अब arm एक तो ये मालूम है आपको, चलिए मैं लिख भी देता हूं। This is my arm. ठीक है जी। arm का कोई और यूसेज होता है? I have arms. बाजुएं नहीं, arms. हथियार, weapons. सो सेम वर्ड, टू मीनिंग्स। ऐसे मल्टीपल मीनिंग्स भी हम करेंगे अब। ओके, ठीक है जी, अगले वाले को देखते हैं अब। अच्छा, बाघ का एक मीनिंग तो पता ही होगा, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। वन। ट्री की भी होती है बार्क,
ट्रीज बार्क। कैसे? वो जो ट्री की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, उसको बार्क कहते हैं। सो दिस ट्री हैज थिक बार्क, थिक बार्क। चलें जी, इसको भी हटा देते हैं। पार्क, दिस इज अ ब्यूटिफुल पार्क, ब्यूटिफुल पार्क। ओके, सेकंड, डोंट पार्क योर कार इन द पार्क। यहां दोनों यूज कर लिए मैंने, नाउन भी और वर्ब भी। राइट, ठीक है। वैसे अगर ये बोर्ड लगाओ ना तो उसके साथ ही गाड़ी खड़ी होगी, दैट इज फॉर श्योर। ये हमारी सिविक सेंस है। चलिए जी, तीनों डन। क्लिप, ओके, दिस इज अ वीडियो क्लिप, वीडियो की क्लिप। या फिर माई मॉम क्लिप्ड माई हेयर, क्लिप लगा देना, क्लिप्ड माई हेयर। वैसे मेरे तो बात बहुत छोटे हैं तो इसमें क्लिप क्या ही एडजस्ट होगा, बट एनी हाउ आई थिंक यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। क्रेन, क्रेन के भी मीनिंग्स हैं जी। क्रेन एक तो आपको मालूम है, ही ब्रॉट अ क्रेन, ब्रॉट अ क्रेन, है ना। क्रेन का एक मीनिंग होता है टू हियर, ऐसे करके सुनने के लिए गर्दन बाहर ऐसे निकाल देना, टू स्ट्रेच योर नेक। सो ही craned his neck during the conversation। हम लोग ना इसी तरह से अब वोकैब के साथ खेलेंगे। इन एवरी सेशन विल ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, जैसे कि मल्टीपल मीनिंग्स डिस्कस किए, किसी दिन हम प्रोनाउंसिएशन भी डिस्कस करेंगे, समडे हम लोग सेंटेंसेस के मीनिंग्स भी बनाएंगे, वर्ड फैमिलीज भी बनाएंगे, ट्रीज भी बनाएंगे, है ना, ताकि आपको ना इन सेशंस का एक्चुअली फ़ायदा हो, ये वर्ड्स रिटेन रह जाएं आपकी वोकैब में। विच इज़ द नेक्स्ट वन। अच्छा, आज का सेशन तो वैसे भी आपको लाइट लग रहा होगा, लव नाउ डेट। चलो जी, आई वॉन्ट टू डेट यू, ये मीनिंग तो सबको पता ही होगा, इसमें होती है हम सब की PhD। सो ये तो मीनिंग बताने की जरूरत ही नहीं है, नहीं भी लिखता मैं तो भी समझ आता। ओके, आई वॉन्ट टू डेट माई सेल्फ। ये आप मुझे गलत ना समझें, ऐसी कोई डिजीज नहीं है मेरे दिमाग में, बट इसका मतलब ये है, इस डेट का मतलब कि किसी पॉपुलर दिन की तरह खुद को, जैसे मैं बताऊं कि मैं ये आपको बताऊं कि ये उस दिन हुआ था जिस दिन मैं आया था, सो मैं एक मार्क बन गया ना। तो जब हम मार्क बनाने की कोशिश करते हैं खुद को, दैट इज डेटिंग योरसेल्फ, यानी कि खुद को डेट पे ले जाके खुद को ही खिला पिला रहे हैं कुछ, है ना। देन आस्किंग योरसेल्फ व्हाट डू यू वांट टू हैव, देन टेलिंग आई वांट टू हैव कॉफी। चलिए, बाकी आई लव टू ईट डेट्स, ये तो आपको पता ही है, ईट डेट्स वो भी एक यूसेज है। देन एक और हो सकता है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। सो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। सॉरी, देख लीजिए अच्छे से। All right, so this brings us to an end to the session. मुझे तो बड़ा मजा आया। I hope आपको भी अच्छा लगा हो। If you have doubts, please comment box में जाइए, लिखिए। If you have any problem, anything जो हम आपके लिए कर सकें, सॉल्व कर सकें, कोई डाउट क्लियर कर सकें, तो हम तो हमेशा तैयार हैं। ठीक है?
Thank you so much. Thank you for being with me. Thank you for watching. And please do get in touch with us if you have doubts और suggestions. इनको better कैसे कर सकते हैं? आप क्या चाहते हैं कि हम ये मॉड्यूल और चाहते हैं, हम ये चीज़ चाहते हैं कि आप ये इंक्लूड करें अपने लेक्चर्स में, we shall include it, है ना? So आप अपने डाउट्स, क्वेरीज जो भी हैं, एक्सपेक्टेशंस हमें लिख के भेजें, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।